as we know it, there are two types of questions. First, yes no question. Yes no questions. And second is WS question. There are two types of question. One is yes no question and another is WS question. Yes no question means interrogative question and intro plus negative question. In grammatical term we call it interrogative and intro plus negative question. First we are looking yes no question means interrogative questions. Interrogative and intro plus negative. Intro plus negative. Now we look interrogative sentence and intro plus negative sentence. In grammatical term we call it helping verb question. Helping verb questions. Now, how to construct helping verb question means interrogative question. Dative are found by using did to friend the subject. Friend the subject. Interrogatives are found by using did to find the subject. Structure for interrogative sentence. For interrogative sentence, did plus subject plus MB first plus object oblique noun and adjective, then question mark. Did plus subject plus MB first plus object noun and adjective. This is structure for interrogative sentence. Now example. Did they arrange your books? Did they arrange your books? Did they arrange your books? Its Hindi meaning will be क्या उन्होंने आपकी बुक अरेंज की? क्या उन्होंने आपकी बुक अरेंज की? Now we look more example. Now we are looking example on interrogative sentence. Did her friend give you pen today? Did her friend give pen today? Its Hindi meaning will be क्या उसके फ्रेंड ने आज पेन दिया? क्या उसके फ्रेंड ने आज पेन दिया?
नेक्स्ट did they grow their hair to participate in the competition. Did they grow their hair to participate in the competition? Did they grow their hair to participate in the competition? या फिर क्या उन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या उन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने हेयर बढ़ाए? क्या उन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने हेयर बढ़ाए? नाउ वी लुक नेक्स्ट एग्जांपल. Did we argue with them for taking our rights? Did we argue with them for taking our rights? Did we argue with them for taking our rights? Its Hindi meaning will be क्या हमने अपने राइट्स लेने के लिए उनसे आर्गू किया? क्या हमने अपने राइट्स लेने के लिए उनसे आर्गू किया? नेक्स्ट डिड कॉफ ने accused by catching him. Did Kovnev accused by catching him? Did Kovnev accused by catching him? Its Hindi meaning will be क्या कॉफ ने आरोपी को पकड़ के गिरफ्तार किया? नेब मीन्स अरेस्ट करना. नेब मीन्स अरेस्ट करना. क्या कॉफ ने आरोपी को पकड़ के गिरफ्तार किया? दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. नाउ हाउ टू कंस्ट्रक्ट नेगेटिव क्वेश्चंस. How to construct negative question means interrogative plus negative, we call it negative questions. Negative question are found by using did and not. Negative questions are found by using did and not. नेगेटिव क्वेश्चन का हम did और not का यूज करके फ्रेमिंग करते हैं. मीन्स इसी को हम ग्रामेटिकल टर्म में वी कॉल इट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्वेश्चन. नाउ स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव. Structure for interrogative plus negative sentence plus negative
sentence. Our structure will be did plus subject plus note plus MB first plus object oblique noun and adjective, then question mark. Did plus subject plus note and be first plus object noun and adjective, then question mark. This is structure for interrogative plus negative sentence, and spoken term we call it negative questions. Negative questions. Now इस स्ट्रक्चर को आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के थ्रू भी राइट कर सकते हैं. इसका मैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करके भी स्ट्रक्चर को लिख सकता हूं. ये जो डिड है और नोट है ये एक साथ कंबाइन हो जाएंगे. डिड और नोट एक साथ कंबाइन होंगे. इसमें होगा आपका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट plus object oblique noun and adjective, then question mark. Our structure will be did plus subject plus MB first plus object noun and adjective. Both are similar structure, दोनों ही सेम स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्वेश्चन के लिए. दैट इज योर चॉइस, वट एवर यू वांट टू यूज. आप जो इनमें से यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं. मीनिंग विल बी सेम for those sentence. Example: did you not publish fake news against him? Did you not publish fake news against him? Did you not publish fake news against him? Its Hindi meaning will be क्या आपने उसके खिलाफ फेक न्यूज पब्लिश नहीं करी. क्या आपने उसके खिलाफ फेक न्यूज पब्लिश नहीं करी. पब्लिश भी मतलब छापी. इसकी प्योर हिंदी बोले तो क्या आपने उसके खिलाफ फेक न्यूज नहीं छापी. नाउ अब इस सेंटेंस को मैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करके भी फ्रेमिंग कर सकता हूं. दिस सेंटेंस कैन बी फ्रेम्ड बाय यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म. हाउ विल यू एक्सप्रेस इट? Didn't you publish fake news against him? Did you publish fake news against him? Did you publish fake news against him? Meaning will be same. क्या आपने उसके खिलाफ फेक न्यूज नहीं छापी है? क्या आपने उसके खिलाफ फेक न्यूज नहीं छापी? नाउ इस सेंटेंस मैंने क्या किया, इस नोट को मैंने डिड के साथ में कंबाइन किया और इसका डिड कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज किया. सेंटेंस विल बी सेम एंड मीनिंग विल बी सेम. मीनिंग एंड सेंटेंस दोनों सेम है. आप ऑकेशनली आप ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के स्ट्रक्चर को इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस की फ्रेमिंग करने के लिए यूज करेंगे. दैट इज राइट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश. नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल. Did I not withdraw money today? Did I not withdraw money today? Did I not withdraw money today? Its Hindi meaning will be क्या मैंने आज
पैसे नहीं निकाले, क्या मैंने आज पैसे नहीं निकाले। नाउ अब इस सेंटेंस को आप कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्म यूज करके भी फ्रेमिंग कर सकते हैं। हाउ विल यू फ्रेम इट? ये नोट को डिड के साथ कंबाइन करेंगे। यू विल यूज सेकंड स्ट्रक्चर, डिड आई विड्रॉ मनी टुडे। डिड आई विड्रॉ मनी टुडे मीन क्या मैंने आज पैसे नहीं निकाले। इस तरीके से आपने देखा इंट्रोगेटिव प्लस रिलेटिव क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करनी है, एंड हमने इसका स्ट्रक्चर भी देखा और उसके एग्जांपल भी देख रहे हैं। एंड स्पोकन टर्म वी कॉल इट रिलेटिव क्वेश्चन। नाउ वी आर लुकिंग WH क्वेश्चन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट WH क्वेश्चन इन पास्ट सिंपल टेंस। हाउ टू कंस्ट्रक्ट WH क्वेश्चन। Now structure for WH question. For WH question. First of all, you will have WH word. Sometimes name will be given. Plus did plus MB first plus object oblique noun and adjective, then question mark. WH word sometimes name will be given. Name means कोई भी आइटम हो सकता है, कोई प्रोडक्ट, कोई इवेंट, कोई प्रोग्राम एंड एनी ऑब्जेक्ट, वी कॉल इट नेम। समटाइम्स रेयर केस में ये नेम को आपको पुट करना पड़ता है। मेनली ये टू वर्ड्स होते हैं, विच एंड हुज के केस में आपको नेम पुट करना पड़ता है, और अदरवाइज नो नीड टू पुट इन अदर वर्ड। रेयर केस में वर्ड भी हो सकता है, हाउ मेनी भी हो सकता है, हाउ मच एंड हाउ ऑफन। दैट्स ऑल। नाउ we look example. What did she buy the day before yesterday? What did she buy the day before yesterday? What did she buy the day before yesterday? Its Hindi meaning will be उसने परसों क्या खरीदा, उसने परसों क्या खरीदा। Now अभी आप देख रहे होंगे आपका WH word what, इस सेंटेंस में नेम का कोई यूज नहीं था। Did सब्जेक्ट she and be first by day before yesterday तक, तो ये आपका ऑब्जेक्ट नाउन एंड एडजेक्टिव। नाउ आपको रेयर केस में नेम पुट करना है। और व्हाट का मेक क्वेश्चन बाय यूजिंग नेम, कैसे फ्रेमिंग करेंगे। व्हाट आर्टिकल डिड यू बाय फ्रॉम मार्केट the day before yesterday? What article did you buy from market the day before yesterday? What article did you buy from market the day before yesterday? Its Hindi meaning will be आपने मार्केट से परसों कौन से सामान खरीदे। आपने मार्केट से परसों कौन से सामान खरीदे, या फिर आपने मार्केट से परसों क्या सामान खरीदे। इसकी ये दोनों हिंदी हो सकती है।
मीन्स जब व्हाट विच का सेंस शो करता है, जब ये व्हाट विच का सेंस शो करता है तो आपको सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में नेम पुट करना पड़ता है। जब व्हाट विच का सेंस शो करे तो आपको डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में नेम शो करना पड़ता है, व्हाट के बाद में नेम आएगा। आप देखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड नेम डिड प्लस सब्जेक्ट यू एम बी फर्स्ट फ्रॉम मार्केट टू यस्टरडे ऑब्जेक्ट नाउन एंड एडजेक्टिव। नाउ we look next example. Why did artist break in the office? Why did an artist break in the office? Why did an artist break in the office? Means आर्टिस्ट ने ऑफिस में क्या तोड़ा, आर्टिस्ट ने ऑफिस में क्या तोड़ा, दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। नाउ अभी मैं व्हाट का नेम वाला यूज पॉइंट करके एक सेंटेंस फ्रेमिंग कर रहा हूं अगेन। अभी जब ये व्हाट फिर विच का सेंस शो करे तो हमें सेंटेंस कैसे फ्रेमिंग करनी है, मीन्स आपको व्हाट के बाद में नेम पुट करना पड़ेगा यदि ये विच का मीनिंग शो करता है। अगेन व्हाट व्हाट विंडो डिड एन आर्टिस्ट break in the office? What window did an artist break in the office? What window did an artist break in the office? Its Hindi meaning will be आर्टिस्ट ने ऑफिस में कौन से विंडो तोड़े, आर्टिस्ट ने ऑफिस में कौन से विंडो तोड़े। नाउ आप समझ गए होंगे हमें नेम से पुट करके सेंटेंस कैसे फ्रेमिंग करनी है और विदाउट नेम हमें कैसे फ्रेमिंग करनी है। नाउ ये मेरे लिए एक वर्ड होता है व्हाट विच एंड हुज, देयरफॉर यू विल हैव टू पुट नेम आफ्टर डब्ल्यू एच वर्ड। नाउ वी लुक नेक्स्ट एग्जांपल which events did they you read among public? Which event did they inaugurate among public? Which event did they inaugurate among public? Its Hindi meaning will be उन्होंने पब्लिक के बीच में कौन सी इवेंट का आयोजन किया, उन्होंने पब्लिक के बीच में कौन से इवेंट का आयोजन किया। ना आप देख रहे होंगे विच फिर नेम डिड सब्जेक्ट एमबी फर्स्ट ऑब्जेक्ट नाउन एंड एडजेक्टिव। विच के केस में यू विल हैव टू पुट नेम, ये जो नेम है विच के केस में आपको पुट करना ही पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी टू कीप नेम आफ्टर विच, otherwise sentence cannot be framed by using name. And other word is whose, and other word is whose, that is also that takes name after wh word, whose and which. Whose pen did we steal from your house today? Whose
पेन चुराया? हमने आज आपके हाउस से किसका पेन चुराया? नाउ नेक्स्ट आप देख रहे होंगे whose के बाद में आपका WH, ये जो वर्ड था उसके बाद में मैंने नेम की फ्रेमिंग की है। हियर इट इज कंसीडरिंग एज नेम, ये नेम की तरह रोल प्ले कर रहा है पेन। यहाँ पर आपको WH वर्ड, फिर नेम पुट करना, फिर आपका डेट, सब्जेक्ट, एम्प्लीफायर, देन अदर वर्ड्स, नाउन एंड एडजेक्टिव। नाउ वी लुक, ये केस ओनली विच और whose के साथ ही होगा, समटाइम व्हाट के साथ में, एंड रेयर केस में हाउ मेनी भी होता है। हाउ मेनी स्टूडेंट, हाउ मेनी students delivered the speech to people. How many students delivered the speech to people? How many students delivered the speech to people? Its Hindi meaning will be कितने स्टूडेंट ने लोगों को स्पीच दिया। नाउ हाउ मेनी केस में आप देख रहे होंगे, हाउ मेनी के केस में यहाँ पे ना तो आपका डिड का यूज किया, ऐसा स्ट्रक्चर का कोई नॉर्म फॉलो नहीं है। यहाँ पे हाउ मेनी के केस में स्ट्रक्चर का कोई नॉर्म फॉलो नहीं है। आप देख रहे होंगे हाउ मेनी, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर एमबी सेकंड, ऑब्जेक्ट, नाउन एंड एडजेक्टिव, देन क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी केस में आपको डिड पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही नेम पुट करने की रिक्वायरमेंट है। हाउ मेनी ये कंडीशन है हाउ मेनी के साथ में एंड हु के साथ में। हाउ मेनी स्टूडेंट डिलीवर्ड द स्पीच टू पीपल। नेक्स्ट मैं आपको एक और बताता हूं, हाउ मेनी गर्ल्स submitted their assignment in a college. How many girls submitted their assignment in a college? How many girls submitted their assignment in a college? Its Hindi meaning will be कितनी गर्ल्स ने कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट किया। आप देख रहे होंगे हाउ मेनी वर्ड, फिर आपका ये सब्जेक्ट, एमबी सेकंड, ऑब्जेक्ट, नाउन एंड एडजेक्टिव। हाउ मेनी केस में आपको ना डिड पुट करना है, ये डिड का पुट नहीं होगा हाउ मेनी वर्ड के बाद में, ना ही ये नेम का पुट होगा। हाउ मेनी केस में, हाउ मेनी केस में डायरेक्ट आप हाउ मेनी वर्ड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, एमबी सेकंड लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, नाउन एंड एडजेक्टिव लिख देंगे। इसमें डिड और नेम का कोई इशू नहीं है। हाउ मेनी इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के लिए हम हाउ मेनी का यूज करते हैं। हाउ मच यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन। नाउ मैं आपको एक वर्ड बताता हूं, हु के केस में whenever we frame sentence by using who in past simple tense, ये who जो वर्ड है past simple में इसका who के बाद में एमबी सेकंड यूज होता है। मैं इसका सेपरेट स्ट्रक्चर आपको बताता हूं। who प्लस एमबी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्लिक, नाउन एंड एडजेक्टिव। हु के केस में हु प्लस एमबी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, नाउन एंड ऑब्जेक्टिव। हु इट्स इन द मीनिंग विल बी कौन। अब अपन लेते हैं एग्जांपल, हु नो योर door. Who knocked your door? Who knocked your door? Its Hindi meaning will be आपका डोर किसने खटखटाया, आपका डोर किसने खटखटाया। आप देख रहे होंगे who, एमबी सेकंड एंड ऑब्जेक्ट।
आपको सेंटेंस ऐसा नहीं बोलना है कि हु डिड नो योर डोर, आपको ऐसा नहीं बोलना है हु डिड नॉक योर डोर, यहाँ पर सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा, रॉन्ग। आपको हु के केस में इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है इन पास्ट सिंपल टेंस, आपको इसका यूज नहीं करना है, दैट इज रॉन्ग। नाउ वी टेल more example on who example again, who suggested him for pursuing an MBA. Who suggested him for pursuing an MBA? Who suggested him for pursuing an MBA? Its Hindi meaning will be उसको MBA परस्यू करने के लिए किसने सजेस्ट किया, उसको MBA परस्यू करने के लिए किसने सजेस्ट किया। नेक्स्ट, who came today? Who came today? कौन आया, आज कौन आया। आप देख रहे हैं हु MB सेकंड एन ऑब्जेक्ट, हु के केस में हमें डिड सब्जेक्ट का यूज नहीं करना है। हु contributed to set up idle. Who contributed to set up idle means आइडल को सेटअप करने के लिए किसने सहयोग दिया, मीन्स हिंदी में बोले मूर्ति को सेटअप करने के लिए किसने सहयोग दिया। हु के केस में आप ना अगेन बता रहा हूँ डिड का यूज करते हैं और ना ही सब्जेक्ट का, ये दोनों यूज हु के केस में नहीं होते हैं। ये पहले मैं आपको वो सेंटेंस बता रहा हूँ जो डिफरेंट काइंड ऑफ तरीके से बनते हैं, लाइक विच, हुज एंड हाउ मेनी, नाउ हु। Now here we are taking how much. How much it is used for uncountable noun. Its Hindi meaning will be same, कितने, कितने, and used for uncountable noun. Example, how much money did you have? How much money did you have? How much money did you have? Its Hindi meaning will be आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितने पैसे हैं। आप लोग देख रहे होंगे हाउ मच के केस में भी आप हाउ मच पुट करेंगे, फिर नेम जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था, जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में बताया था, स्ट्रक्चर लिखा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग फ्रेमिंग हो रही है। फिर समटाइम्स नेम, डिड, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड अदर, सब्जेक्ट एमबी फर्स्ट एंड अदर वर्ड। हाउ मेनी के, हाउ मच के केस में भी आपको ये नेम पुट करना पड़ेगा, हाउ मच के केस में भी आपको नेम पुट करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, हाउ मच rice did they purchase from market? How much rice, how much rice did they purchase from market? How much rice did they purchase from market? Its Hindi meaning will be उन्होंने मार्केट से
कितना चावल खरीदा, उन्होंने मार्केट से कितना चावल खरीदा। आप देख रहे होंगे ये हाउ मच, देन नेम, वी कंसीडर नेम, इसमें आपको WH, देन नेम, देन डेट, देन सब्जेक्ट प्लस एनवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट नाउन एंड एडजेक्टिव। आप देख रहे होंगे WH के वर्ड में मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया था, हाउ मच में भी यही स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंस की फ्रेमिंग होगी, इसी स्ट्रक्चर के थ्रू फ्रेमिंग होगी। विच, सेकंड हुज, थर्ड हाउ मच एंड समटाइम व्हाट, में इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हमें सेंटेंस फ्रेमिंग करनी पड़ेगी, मतलब हमें WH के वर्ड में नेम पुट करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था अभी हु के केस में आपको हु एमबी सेकंड एंड ऑब्जेक्ट, मतलब हु के बाद में आपका वेयर वर्ब का सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरीके से सिर्फ ओनली हु के केस में सेंटेंस की इस तरीके से फ्रेमिंग होगी। एंड हाउ मेनी के केस में भी क्या था, आपका हाउ मेनी आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा और एमबी सेकंड एंड ऑब्जेक्ट। मैंने अभी आपको हाउ मेनी के एग्जांपल बताए थे। तो आप लोग समझ गए होंगे डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस विच इज framed by using this structure. Now we are taking sentence without using name, बिना यूज नेम वाला हम सेंटेंस ले रहे हैं। Now we look whom means किसने या फिर किनको, किसने या फिर किनको। How to construct sentence by using whom. Example, whenever you will frame sentence you will have to preposition with whom, मतलब whom के साथ में आपका कोई भी preposition पुट करना पड़ेगा। preposition will be for, with and to, these are preposition which will take place with whom. Example, with whom did a tailor discuss about the job. With whom did a tailor discuss about a job? With whom did a tailor discuss about a job? Its Hindi meaning will be टेलर ने किनके साथ जॉब के बारे में डिस्कस किया, टेलर ने किनके साथ जॉब के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट, फॉर whom did she stitch cloth for whom did she stitch cloth, for whom did she stitch cloth, its Hindi meaning will be उसने किनके लिए क्लोथ सिले, उसने किनके लिए क्लोथ सिले। ना आप देख रहे होंगे ये आपको WH वर्ड, देन डिड, सब्जेक्ट, एमबी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन एंड एडजेक्टिव। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस की फ्रेमिंग हो रही है जो आई टोल्ड यू स्ट्रक्चर, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था। नाउ वी लुक अनदर वर्ड, हाउ did you find my address? How did you find my address? How did you find my address? Its Hindi meaning will be आपने मेरा एड्रेस कैसे ढूंढा, आपने मेरा एड्रेस कैसे ढूंढा। Now next, how did I ride her car? How did I ride her car? How did I ride her car? Its Hindi meaning will be मैंने उसकी कार कैसे चलाई।
मैंने उसकी कार कैसे चलाई। नाउ हाउ मीन्स कैसे, हाउ मीन्स कैसे। नाउ वी आर टेकिंग व्हाई, व्हाई, व्हाई मीन्स क्यों, ऑब्लिक किस लिए। हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस, व्हाई डिड यू बी इन अ क्लास, why did you weep in a class, why did you weep in a class, its Hindi meaning will be आप क्लास में क्यों रोए, आप क्लास में क्यों रोए। इवन why का सिमिलर मीनिंग होता फॉरवर्ड, forward and why both are similar meaning, means क्यों। now how will you construct sentence by using forward, आप बोलेंगे forward did you weep in a class, forward did you weep in a class, its Hindi meaning will be आप क्लास में क्यों रोए, क्यों रोए। मीनिंग दोनों में सेम है, आप फॉरवर्ड का भी यूज कर सकते हैं, इवन वाई का भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर सिमिलर मीनिंग। नाउ अगेन वी टेक सेंटेंस forward did they listen to the music। now forward did they listen to the music, forward did they listen to the music, its Hindi meaning will be उन्होंने म्यूजिक किस लिए सुनी, उन्होंने म्यूजिक किस लिए सुनी। ना आप देख रहे हो एग्जांपल, मैं यहाँ पे वाई का भी पुट करके फ्रेमिंग कर सकता हूँ, मीनिंग विल बी सेम, व्हाई डिड दे लिसन टू द म्यूजिक। नाउ हियर वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मीन्स कब तक, ऑब्लिक कितने देर। हाउ विल you create its example, how long did you stay in that place, how long did you stay in that place, how long did you stay in that place, its Hindi meaning will be आप उस प्लेस पे कितने देर रुके, आप उस प्लेस पे कितने देर रुके, ऑब्लिक आप उस प्लेस पे कब तक रुके। नाउ नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डिड शी वेट फॉर मी, how long did she wait for me, how long did she wait for me, its Hindi meaning will be उसने मेरा कब तक इंतजार किया, उसने मेरा इंतजार कब तक किया। नेक्स्ट वी आर लुकिंग अनदर वर्ड, हाउ ऑफन, its Hindi meaning will be कितने बार, कितने बार। हाउ विल यू क्रिएट सेंटेंस, हाउ ऑफन did devotees visit to temple in a week। How often did devotees visit to temple in a week? How often did devotees visit to temple in a week? It's devotees ने वीक में कितने बार टेंपल विजिट किया, that is its Hindi meaning। Again, how often did we
making fun. How often did we make him fun? How often did we make him fun? Its Hindi meaning will be हमने उसका कितने बार मजाक उड़ाया, हमने उसका कितने बार मजाक उड़ाया. That is its Hindi meaning. Now our next word where. Where did you sit today? Where did you sit today? Where did you sit today? Its Hindi meaning will be आज आप कहाँ बैठे, आज आप कहाँ बैठे. Where means कहाँ. Next our word when. When did you come to school? School. When did you come to school? When did you come to school? Its Hindi meaning will be आप स्कूल कब आए, आप स्कूल कब आए. आप लोग देख रहे होंगे यहाँ मैंने आपको वन बाय वन करके पूरा WH वर्ड्स के सेंटेंस की फ्रेमिंग करके बता दी है. आप लोग इस तरीके से और भी WH सेंटेंस हैं, सेंटेंस की फ्रेमिंग कर सकते हैं और अपने कन्वर्सेशन पार्ट में से इंक्लूड कर सकते हैं. So please watch my next video which is mandatory for speaking English, and this video will be cast on conversation topic.